Good evening, everyone. Before starting our today's session, I would like to share a small introduction of our facilitator, Dr. Farida Amin. Dr. Farida Amin is a family medicine consultant, educationist, and primary care researcher. She is a director of Indus Hospital of Family Medicine and Public Health. She is a fellow of CPSP and RCTP. Besides that, she has a master's degree in clinical research and a PhD from Aga Khan University Hospital. She is so kind and a noble person and always try to help the mankind. And to fulfill that aim, she is a medical advisor of our primary healthcare welfare organization in Karachi named Feasibilillah Clinic. Today, Feasibilillah has four branches all over Pakistan. She is a CPSP supervisor, examiner of MCPS, FCPS, and MRCGP International, and faculty at CPSP. Please welcome Dr. Farida Amin. Thank you. Thank you, Mehek, for the introduction. Assalamu alaikum, everybody. Can you all hear me clearly? Can you all see me? Walaikum assalam, Zohaib, Umehani, Raja, Harim, and Bilal, Fariha, Aisha, 954411, whoever you are, please write your names. SFS, please write your name. Aisha, Sadaf, so this, I can see a lot of Sadafs and Aisha. So Assalamu alaikum, all the Sadafs and all the Aishas and Dr. Mansoor and Dr. Sadaf, can everybody else hear me? Sadaf cannot hear me. Is there a problem with your connection, or is there a problem with my connection? Is there a problem with the voice? Walaikum assalam. Okay. No, everybody can hear me. So Sadaf, there's a problem. If you can reconnect, so just disconnect and then reconnect, right? Okay. So you would be able to hear me. So I'm going to basically introduce you to a few family medicine qualifications, as well as we're going to talk about and just one interesting case in family medicine. Though I see a lot of interesting cases in family medicine every week. एंड आई थिंक कि अगर मैं आप लोगों को एक एक केस बताने बैठूं तो पूरी रात निकल जाएगी और मैं आप लोगों को जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस ही बताते रह जाऊंगी सो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट वन इंटरेस्टिंग केस एंड सी दैट व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्राइमरी केयर प्रैक्टिशनर और फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट इन managing patients coming to primary care and specifically in looking at the biopsychosocial model of disease. So let's start today and how you could interact with me is through the chat box. तो आप लोग अपने chat box में जो है वो जो भी आप लोग कहना चाहते हैं लिखना चाहते हैं you can just write it. So what do you think about this? Is there any difference between a GP and a family physician? Dr. Kabal, we are going to interact and you will be allowed to ask any questions you would like. हम ऐसा करेंगे कि ये इस discussion के बाद जो है वो आप लोगों को unmute करने का मौका मिलेगा. So you can unmute yourself, raise your hand, unmute yourself, and we are going to allow you to speak. So Mehek, at the end of the session, we are going to allow people to ask questions. Please facilitate, okay? So what do you all think? If you can write in the chat box, there's no difference between a GP and a family physician. क्या ख्याल है लोगों? Okay, so Dr. Fariha thinks that this is false because family physicians are actually trained and GPs can follow a random practice. So Mansoor says it's true. There is no difference between a general practitioner and a family physician. Kavita also says true. So actually, बेटा GP जो है ना general practice की अगर हम बात करते हैं ना तो यूके में GP को GP कहते हैं, ठीक है? यूके में GP को GP कहते हैं, बिल्कुल मंसूर ने ठीक कहा. और USA में GP को family physician कहते हैं. अब यहाँ पे क्या इशू है पाकिस्तान में कि अगर आप जीपी कहते हैं ना तो जीपी वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एमबीबीएस किया हुआ है जो कि ग्रेजुएट्स हैं तो वो वैसे भी उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत है तो दे आर नोन एज जीपीज तो फैमिली फिजिशियन हम यहाँ पे पाकिस्तान में उन लोगों को कहते हैं जो कि ट्रेन्ड है हु हैव एनी ट्रेनिंग इन फैमिली मेडिसिन उनको हम फैमिली फिजिशियन कहते हैं तो दिस इज एक्चुअली फॉल्स
क्योंकि स्पेशलिटी ऑफ जनरल प्रैक्टिस अगर आप पाकिस्तान में देखें ना, तो ये सारी चीजें जो है ना वो उसमें है। FCPS है, 4 years ट्रेनिंग फैमिली मेडिसिन में। MCPS है फैमिली मेडिसिन में, जिसके 2 पाथवेज हैं। एक 2 years ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, या फिर 5 years ऑफ एनी एक्सपीरियंस, ठीक है, उसमें भी आप MCPS का एग्जाम दे सकते हो। सिमिलरली MRCGP यूके में आपको यूके जाके और वहां पे रेजिडेंसी करनी पड़ती है, तब जाके आपको MRCGP यूके मिलता है और आपको यूके में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। MRCGP इंटरनेशनल एग्जाम जो है उसका सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लाइक MCPS, ईदर ऑफ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और 2 years ऑफ ट्रेनिंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल, ठीक है, ये हम एक एक को डिस्कस करेंगे। देन यू हैव एन अमेरिकन बोर्ड ऑफ फैमिली मेडिसिन जो कि यूएस से होता है, और वो लोग ट्रेन होते हैं, यूएस ट्रेन होते हैं फैमिली मेडिसिन में, एंड दे कैन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान एज वेल एंड यूएस एज वेल। फिर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज और डिप्लोमा जो कि आप एवरी अदर डे यू कम अक्रॉस डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज, दीज हेल्प यू टू गेट इनटू फैमिली मेडिसिन, दीज हेल्प यू टू बिकम अ फैमिली फिजिशियन, ठीक है। तो जीपी से जो फैमिली फिजिशियन बनने का जो सफर है ना, उसमें पहला स्टेप जो है वो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेज, या फिर जिस तरीके से हम MCPS कहते हैं या फिर MRCGP इंटरनेशनल, इन दोनों डिग्री से आप स्टार्ट कर सकते हो गेटिंग इनटू फैमिली मेडिसिन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो ये सारी अवेलेबल है आप लोगों के पास ऑप्शंस। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि हमारे जो डेली के जो चैलेंजेस होते हैं, जनरल प्रैक्टिस में जो चैलेंजेस होते हैं, प्राइमरी केयर में जो चैलेंजेस होते हैं, वो सबसे हटके होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि एक जीपी का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। हमारे एक बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना होता है टू बी एबल टू बी द बेस्ट फॉर द पेशेंट, ठीक है। So the only difference between internal medicine and family medicine is an inpatient setting in internal medicine and OPD setting in family medicine. Is that true? इंटरनल मेडिसिन में इनपेशेंट होता है, फैमिली मेडिसिन में ओपीडी होता है, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो कविता सेज इज फॉल्स, उम्मे हानी भी कह रही है फॉल्स है। तो कविता, व्हाट अदर डिफरेंस डू यू सी? और क्या डिफरेंस देखते हैं आप इंटरनल मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में? व्हाट अदर डिफरेंस डू यू सी? So I see that most of you think it's false. So what other difference do you see? और क्या differences होते हैं? Continuity of care, family medicine जो है वो of course उम्मे हानी ने कहा पीड्स भी देखते हैं, गायनी भी देखता है फैमिली मेडिसिन, होल फैमिली मेंबर्स देखते हैं, ठीक है, ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑल द जेंडर्स, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स को भी देखते हैं हम, मेल्स को भी देखते हैं, फीमेल्स को भी देखते हैं, राइट, एवरी एज ग्रुप, ऑल जेंडर्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। सो इंटरनल मेडिसिन में ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, जबकि हमारे पास रिलेटिवली कोल्ड केसेस आते हैं, और वी कंटिन्यू टू केयर फॉर द फैमिली एंड प्रोवाइड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एज वेल, ठीक है। इंटरनल मेडिसिन प्रिवेंशन पे इतना फोकस नहीं है जितना प्रिवेंशन पे फोकस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना और डिजीज को प्रिवेंट करना, ठीक है। सो दिस इज what family medicine is all about. So let's look at a family medicine case, ठीक है। A 35 years old female presents with sudden onset of blindness for the last 1 month. 1 महीने से sudden onset of blindness हो गई है। What further questions in the history would you ask to reach the diagnosis? What investigations would you order and how would you manage her? तो मुझे जल्दी से बताइए कि इस पेशेंट जो कि 1 महीने से सडन ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस हुई है, क्या क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ओके, सो यू से यू वुड लाइक टू आस्क फॉर डायबिटीज हिस्ट्री, सो कोमॉर्बिड्स पूछना चाहते हैं, और व्हाट अबाउट द आई साइट के बारे में और क्या पूछना चाहते हैं? व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू आस्क? क्या पूछना है हिस्ट्री में? क्या क्या पूछेंगे इस पेशेंट से? 1 महीने से एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा, एक आंख से दिखाई दे रहा, राइट आई से नहीं दिखाई दे रहा। हिस्ट्री
प्रेशर ओके, व्हाट एल्स? हिस्ट्री ऑफ मायोपिया, हाइपरोपिया, ठीक है, तो आपने पूछना है कि आपकी विजन वैसे कैसी थी, चश्मे पहनती थी नहीं पहनती थी, ब्लड प्रेशर है या नहीं है, अनकंट्रोल्ड है कंट्रोल्ड है, और क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स, क्या कविता? बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली बताइए कौन से एसोसिएटेड सिम्टम्स? डॉक्टर लाजवंती ने कहा हेडेक, वेरी गुड। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मंसूर आप पूछेंगे कैसे? व्हाट क्वेश्चंस आर यू गोइंग टू आस्क? वो तो आप मतलब एग्जामिन कर सकते हो ना। एनी ब्लरिंग ऑफ विजन? नो, कोई ब्लरिंग ऑफ विजन नहीं हुई है। अदील सडन ऑनसेट हुआ, एक दिन सुबह उठी तो एक आंख से नजर नहीं आ रहा था, राइट आई से नजर नहीं आ रहा था, कोई हेडेक नहीं है। नवाल ने पूछा एनी पॉइजन? आर यू ट्राइंग टू आस्क के आंख में कुछ तो नहीं गया था? आंख में कुछ नहीं गया था। पेनफुल भी नहीं है, दर्द कभी नहीं हुआ। बिहाइंड द आईज पेन आपने पूछा, वो भी नहीं हुआ। हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हार्ट का इशू भी नहीं है। वॉमिटिंग्स नहीं हुई, ठीक है। एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू आस्क? एनी बाइट? अच्छा, आपको इंसेक्ट बाइट? नो इंसेक्ट बाइट। ट्रॉमा की हिस्ट्री? नन। कोमॉर्बिड्स? नन। हिस्ट्री ऑफ फॉल? नो। ठीक है, ये सब जवाब नो है। और कुछ पूछना है आपने? एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क? फैमिली में किसी और को ब्लाइंडनेस है, सेम सिम्टम्स है? नो। नेक रिजिडिटी? नेक में पेन पूछोगे नबिया? नेक रिजिडिटी तो एक साइन हो गया ना, इट्स नॉट अ सिम्टम। सो नेक रिजिडिटी नो, नो पेन इन द नेक, ठीक है। टीबी की हिस्ट्री? नो मलिक, नो हिस्ट्री ऑफ टीबी। और एनीथिंग एल्स? लिम्ब? वेरी गुड, अदील ने कहा लिम्ब वीकनेस, स्लरिंग ऑफ स्पीच, मोटर वीकनेस? नो, कोई ऐसी चीज नहीं हुई, बस सडन ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस इन द राइट आई। ड्रग हिस्ट्री? नेगेटिव, ठीक है। सो दिस वाज अ रियल पेशेंट हु केम टू मी। ये मैं अपने एक्चुअल पेशेंट का आप लोगों से केस डिस्कस कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को और आहिस्ता आहिस्ता आगे बताती जाऊंगी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी। और कुछ पूछेंगे इस पेशेंट से? एक महीने से उसको ब्लाइंडनेस हो रही है, और कोई सवाल पूछेंगे? ड्रग हिस्ट्री? नहीं, अभी तो कोई दवाई नहीं ले रही। और कुछ पूछेंगे इससे? एक महीने से ब्लाइंडनेस हो रही है भाई, एक यंग लड़की को अगर ब्लाइंडनेस हो जाए एक महीने से, तो उसने क्या क्या किया होगा उसके लिए? Why did she not come early? Very good. कविता ने कहा कि आप इतने एक महीने बाद क्यों आई हैं? तो there's a polite way of asking it ना, ऐसे तो नहीं आप पूछते ना पहले क्यों नहीं आई तुम मेरे पास। आप कैसे पूछोगे कि आपको एक महीने से ये शुरू हुआ, तो आज क्या वजह हुई कि आपने सोचा कि आप मेरे पास आए? दैट इज हाउ आई वुड आस्क, ठीक है। सो फातिमा ने कहा कोई स्किन रैश तो नहीं है, एसएलई की कोई हिस्ट्री तो नहीं है? नो, नो स्किन रैश, नो हिस्ट्री ऑफ एसएलई। हाँ, कोई दवाइयां यूज की आंख के लिए? हाँ, ड्रॉप्स वगैरह डाले थे, नहीं, बेहतर बेहतर नहीं हुआ। हैव यू एवर बिन टू एनी डॉक्टर? वेरी गुड। सो नबिया ने कहा हैव यू एवर बिन टू एनी डॉक्टर? तो यस, शी इज बिन टू मल्टीपल डॉक्टर्स। यही तो सारी बात होती है कि हमारे पास पेशेंट को सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये तो खैर ब्लाइंडनेस है, लेकिन हर पेशेंट गला खराब हो तो ईएनटी के पास पहुंच जाता है, पेट में दर्द हो तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के पास पहुंच जाता है, हेडेक हो तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। और क्या होता है कि मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं, और अक्सर एक छोटा सा कॉज निकल के आता है जो कि हिस्ट्री से ही पता चल रहा था आपको, ठीक है। डॉक्टर मंसूर ने कहा कोई हिस्ट्री ऑफ आई इन्फेक्शन तो नहीं है? नहीं है। एवर हैड द सेम प्रॉब्लम बिफोर? कभी अपनी आंखों का प्रेशर चेक करवाया? नहीं, कभी कोई मसला हुआ नहीं, लेकिन पिछले एक महीने से मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गई हैं, आंखों का प्रेशर भी चेक करवाया है, सब कुछ नॉर्मल है। एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी? सर्जरी की कोई हिस्ट्री नहीं है। सो शी टोल्ड मी, व्हाट डिड शी टेल मी? अच्छा, तो आपने क्या ये सारी चीजें कवर की हैं हिस्ट्री में? डू यू थिंक यू कवर्ड द बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ डिजीज हियर? हैव यू कवर्ड द बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ डिजीज हियर? कुछ रह गया है पूछने को? फातिमा कह रही है मूड, हर मूड इज लो, शी फील्स anxious, and because she's lost, she is not able to see from the right eye, that is why she feels very anxious. Does she drive? No, she does not drive, she's a housemaker, homemaker. Or kuch? Anything else you would like to ask? प्रोफेशन क्या है? होम मेकर है। प्रेग्नेंट नहीं है, शी इज नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है। दीज आर ऑल वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस। एनी हिस्ट्री ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस? हरीम? नहीं, शी इज नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशंस। सो हिस्ट्री में सडन ऑनसेट हुआ, ठीक है। सबसे पहले ऑनसेट के बारे में पूछते ना, कैसे हुआ? तो सडन ऑनसेट हुआ, कोई पेन नहीं है, कोई टीयरिंग नहीं है, कोई फ्लोटर्स नहीं नजर आए। फ्लोटर्स रेटिनल डिटैचमेंट होती है ना, उसमें नजर आते हैं।
डॉक्टर फातिमा ने कहा एडिक्शंस तो नहीं है, एडिक्शंस भी नहीं है, इनको कोई मोटर सेंसरी सिम्टम्स भी नहीं है, आई पेन भी नहीं है, फीवर भी नहीं है, वेट लॉस भी नहीं है, हेडेक भी नहीं है, सिस्टमैटिक रिव्यू इज अनरिमार्केबल, कोमॉर्बिड्स नहीं है, सिग्निफिकेंट पास हिस्ट्री नहीं है। फरीहा ने कहा कॉस्मेटिक प्रोसीजर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। शी हैज 2 चिल्ड्रन, हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, करंटली ऑन नो मेडिकेशंस। साइकोसोशल हिस्ट्री में इन्होंने बताया कि फादर रिसेंटली पास्ड अवे, एडिक्शंस जो है वो इनके कोई भी नहीं है। अब आपको ये हिस्ट्री तो पता चल गई, ठीक है, और इन्होंने मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाया है और सब चीजें नॉर्मल आई है। अब अगर आप इनकी जो है वो एग्जामिनेशन में कुछ देखना चाहें तो क्या देखना चाहेंगे? व्हाट वुड यू एग्जामिन फॉर इन दिस पेशेंट? डॉक्टर सदफ ने कहा माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक की हिस्ट्री तो नहीं है, नहीं है। तो सदफ ने कहा कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर देखेंगे, तो आप ऐसे करके आईज को 2 उंगली से दबा के देखते हैं कि बिल्कुल स्टोनी हार्ड तो नहीं है। तो जब आपने एग्जामिन किया तो वो नॉर्मल लगा आपको, बायलैटरल आईज में एक जैसा लगा, ठीक है। फंडोस्कोपी करके देखना चाहेंगे, क्रेनियल नर्व्स चेक करेंगे, ये सब नॉर्मल था। फंडोस्कोपी आपको आती नहीं है करने तो आपने की नहीं, और पेशेंट ने कहा कि मैंने पूरा आई का एग्जामिनेशन करवाया है, पूरा आंखों की पुतली बड़ी करके उन्होंने पीछे तक देखा था, और इनके हस्बैंड ने आपको बताया कि ये तो पूरा आंख का मुआयना हम करवा चुके हैं। मगर वो आंख के मुआयने पे उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आंख का मुआयने पे कोई मसला नहीं है। फिर आंख के डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए, वो भी सब नॉर्मल आए, आंखों के सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं इनके। अच्छा, फातिमा ने कहा कि अब आप इनका ईएसआर और सीआरपी करवाना चाहोगे, तो व्हेन शी शोड यू हर रिजल्ट्स तो उसमें सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी सब नॉर्मल था। एनीथिंग एल्स? ऑटो इम्यून वर्कअप कराना है। सो उम्मे हानी, ऑटो इम्यून वर्कअप पे इनका जो है ईएसआर सीआरपी हुआ था, एएनए हुआ था, वो नेगेटिव था, ठीक है। इनका बी स्कैन कराना है, वो भी नॉर्मल था। जुहेब, दैट वाज नॉर्मल एज वेल। Anything else you would like to now order? But you're not considering that the patient has been to a eye surgeon. Eye surgeon को जब वो दिखा कर आई है तो आपने क्यों करा रहे हैं ये टेस्ट? उन्होंने तो सब कुछ करा लिया है और कहा है कि आंख का कोई मसला नहीं है आपको, बीबी आंख का कोई मसला नहीं है तुमको। सीटी हेड मंसूर, तो वो जो आई सर्जन थे ना, उन्होंने क्या किया कि तुमको आंख का कोई मसला नहीं है, तुमको दिमाग का हो सकता है, तो उनको न्यूरो सर्जन के पास भेज दिया। न्यूरो सर्जन ने उनका एमआरआई, एमआरए, जो एमआर एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राम होता है, वो भी करवा के देख लिया। आर्टीरियल एंड वीनस वो सब नॉर्मल आया। सो एमआरए, एमआरवी, एमआरआई सब नॉर्मल है, और ये पेशेंट आपको सबके रिजल्ट्स भी दिखा रही है। आई वाले ने जो लिखा है नोट के देयर इज नो आई इशू, वो भी दिखा रही है, और वो सब नेगेटिव है। सो फरीहा, ये कौन सा इनको जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है आपके ख्याल में? सो इन्वेस्टिगेशंस में ये दोनों नॉर्मल है, ठीक है ना, और आई के भी जो है वो सारे टेस्ट नॉर्मल है। सो दिस इज व्हाट शी हैड। शी हैड कन्वर्जन डिसऑर्डर। मलिंगरिंग भी हो सकती है सदफ। मलिंगरिंग और कन्वर्जन डिसऑर्डर में फर्क ये है कि मलिंगरिंग जानबूझ के होती है और किसी इंसेंटिव होता है पेशेंट का, उसको कुछ गेन हो रहा होता है। और कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है कि पेशेंट एक्सपीरियंसेस जेन्युइन specific physical symptoms for which no physiological basis can be found. So Fatma, this is not malingering. Conversion disorder is not malingering. ठीक है? So conversion disorder में patient खुद को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है. Unfortunately, the patient does not have control over his or her symptom. Somatoform disorder है, yes, but it presents as a disease and the patient cannot control it. You know, they actually cannot see. They actually cannot see, unfortunately. Okay, so this is conversion disorder, and anxiety is converted into a physical symptom. These are real symptoms. ठीक है, ये लोग चलना छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, हाथ एक वीक हो गया, पांव वीक हो गया। I've seen cases जिसमें आधा part of the body is paralyzed. She's not moving one hand, she's not moving one leg, limp करती हुई wheelchair पे आई है. All the tests are normal. Conversion disorder is that, you know,
I would say exciting, interesting, but at the same time that debilitating for the patient. ठीक है, और अगर आप पेशेंट से कहिए तो तुम सारे ड्रामे कर रही हो, यू नो मलिंगरिंग आप सोचे और आप ये सोचिए तो तुम सारे ड्रामे कर रही हो. सो इमेजिन द इम्पैक्ट यू कैन मेक ऑन अ पेशेंट्स फर्दर, यू नो, साइकोलॉजिकल हेल्थ के. एक तो उसके कंट्रोल में नहीं है, ऊपर से डॉक्टर ये कह रहा है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो. So you can imagine the agony the patient might go through if you put everything on the patient's head, right? Yes, so this is monoocular blindness secondary to conversion disorder. बिल्कुल ऐसे ही. इनकी जो फादर की डेथ की हिस्ट्री थी ना रिसेंट, उसको फर्दर एक्सप्लोर करने की जरूरत थी. मे बी द पेशेंट हैड एंजाइटी टू बिगिन विथ, और फादर की जो हेल्थ है या जो फादर की डेथ है ना, उसने फर्दर एंजाइटी को एक्सैसरबेट कर दिया, और जिसकी वजह से शी हैड कन्वर्जन डिसऑर्डर. ठीक है, सो हाउ वुड यू मैनेज दिस? Well, you should refer the patient to a psychiatrist, treat the cause, जो भी cause होगा जाहिर है, and counsel, refer for a comprehensive eye exam अगर अभी तक हुआ हुआ नहीं है तो of course उसका तो हुआ हुआ था, और psychiatry refer करेंगे. ठीक है, फार्मा मेडिकेशंस भी देते हैं बेटा, इसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर में SSRIs दी जाती है. ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दी जाती है. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट वन केस इन फैमिली मेडिसिन. इस तरह के हम बहुत सारे केसेस जब हमारा मॉड्यूल्स चल रहे होते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर मॉड्यूल्स, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज रिवर्सिबल एंड द पेशेंट बिकेम बेटर. शी स्टार्टेड सीइंग फ्रॉम द राइट आई अगेन एंड शी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विद इट. तो एज अ फैमिली मेडिसिन डॉक्टर, the one thing which you cannot do is you cannot ever tell the patient I can do nothing for you. आपके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आपका कोई इलाज नहीं है, ये बात कभी भी पेशेंट से आप नहीं कह सकते बीइंग अ फैमिली फिजिशियन. क्योंकि अगर आपके पास इसका इलाज नहीं है या आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं है, तो किसी के पास भी नहीं है. ठीक है, ये पेशेंट को आई वाला कहेगा मैं क्या करूं, न्यूरोसर्जरी वाला कहेगा मैं क्या करूं, इंटरनल मेडिसिन वाला कहेगा बीबी तुम ये सब सोच रही हो. लेकिन सिर्फ एक फैमिली फिजिशियन है जो कि रियलाइज कर सकता है कि पेशेंट का बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डिजीज के हिसाब से पर्सन सेंटर्ड केयर देना, रादर के दैट यू गिव देम डिजीज सेंटर्ड केयर. ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर फातिमा इसमें हम ऐसे ही देते हैं कि जब साइकाइट्री रेफरल होता है तो वो जब दवाई शुरू करते हैं तो यू कैन आस्क द पेशेंट टू कम बैक टू यू. तो ये पेशेंट क्या होता है, एक दफा चले जाते हैं किसी स्पेशलिस्ट के पास एंड देन दे कीप ऑन कमिंग बैक टू यू फॉर देयर डे टू डे सिम्टम्स. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू मैनेज देम. सो मेडिकल एथिक्स. ठीक है, मेडिकल एथिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिसिन का, जो कि हमें मेडिकल स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है. ये भी पोस्ट ग्रेजुएट फैमिली मेडिसिन एग्जाम में आप लोगों को मेडिकल एथिक्स पढ़ाई जाएगी, विच इज द फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन एंड स्पेसिफिकली आई वुड से अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल टीचिंग. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंडर ग्रेड में बहुत कम कॉलेजेस हैं जो मेडिकल एथिक्स पढ़ाते हैं. ठीक है, ऑल्दो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप लोगों में से कितने लोगों को पढ़ाई गई है अंडर ग्रेजुएट में मेडिकल एथिक्स? आई एम श्योर हार्डली किसी को जो है पढ़ाई गई हो. So lot of people ask me कि जो है स्कोप ऑफ स्पेशलिटी ऑफ फैमिली मेडिसिन क्या है. नबिया आप लोगों को पढ़ाई गई है, दैट इज अमेजिंग. ठीक है, ये बहुत अमेजिंग बात है. बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल एथिक्स पढ़ाई जाती है. ठीक है, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके ना उसका रुझान बढ़ता जा रहा है. पीपल आर नाउ बीइंग अवेयर ऑफ मेडिकल एथिक्स और मेडिकल एजुकेशन के बारे में लोग समझते जा रहे हैं. ठीक है, SMC डेफिनेटली दैट्स वेरी गुड. हो सकता है आप लोगों की जो मेडिकल एजुकेशन की टीम हो वहां पर बहुत स्ट्रांग होगी. And SMC, I'm sure JSMU, Dr. Kausar and Dr. Lubna, I'm sure पढ़ाया गया होगा. So there is no scope of specialty of family medicine in Pakistan. Let me tell you कि जो है इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है. एक अभी रिसेंट मैंने डॉक्टर जफर मिर्जा जो कि फेडरल हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका मैंने पूरा जो
पेपर पढ़ा है जो कि डॉन में पब्लिश हुआ है, एंड ही सेड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हम अपने प्राइमरी केयर को स्ट्रेंथन करें थ्रू क्वालिफाइड पीपल एंड थ्रू क्वालिफाइड प्राइमरी केयर प्रैक्टिशनर्स, जिसमें फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स जो है वो उसका कोर होते हैं, ठीक है, उसका सेंटर होते हैं। कोई भी कंट्री में अगर प्राइमरी केयर को आपको इम्प्रूव करना हो तो फैमिली मेडिसिन को इम्प्रूव करना और अपनी जनरल प्रैक्टिस को ट्रेन जनरल प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीपी, आप लोग जब सोचिए मेडिकल कॉलेज से निकल के आते हैं तो क्या हर एज को, हर प्रॉब्लम को देखने के काबिल होते हैं? कितना प्रॉब्लम होता है आपको, एक जीरियाट्रिक पेशेंट आपके पास 65 ईयर ओल्ड आ जाए और 6 कोमॉर्बिड्स के साथ, आप कैसे मैनेज करोगे? सोचिए। क्योंकि अंडर ग्रेड में फैमिली मेडिसिन हार्डली कुछ कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है। एकेयू में हमेशा से है, इसके अलावा अब जो है वो बकाई में शुरू हो रही है, जियाउद्दीन में है, कराची में तो है काफी सालों में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में फैमिली मेडिसिन स्टार्ट कर दी गई है पढ़ाना, लाहौर में कुछ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैमिली मेडिसिन पढ़ाई जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके फैमिली मेडिसिन अंडर ग्रेड में आती जा रही है। और आप ये सोचिए कि जहां जहां फैमिली मेडिसिन के टीचर्स की जरूरत पड़ेगी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस में, तकरीबन पूरे मुल्क में मेरे ख्याल में 100 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये 100 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस में जब जरूरत पड़ेगी फैमिली मेडिसिन पढ़ाने के लिए तो कौन आएगा? आप लोग आएंगे, वो लोग जिन्होंने या तो एमसीपीएस किया हुआ है या एमआरसीजीपी किया हुआ है इंटरनेशनल, दे विल बी टीचिंग फैमिली मेडिसिन इन कॉलेजेस, ठीक है? तो आप लोगों का स्कोप बढ़ने वाला है। सेकेंडली ये कि आप लोगों ने सेहत सहूलत कार्ड के बारे में सुना होगा, जो कि पंजाब में तो लॉन्च हो गया है और खैबर केपीके में जो है वो लॉन्च, केपीके में भी लॉन्च हो गया है, सिंध में भी इस तरह का कार्ड लॉन्च जो है वो शुरू हो गया है होना। तो ये सारे जो सेहत सहूलत कार्ड है इसको लिंक अप करना है जीपी प्रैक्टिसेस के साथ, लेकिन ये कोई भी जनरल प्रैक्टिस नहीं होगी जिनके साथ सेहत सहूलत कार्ड्स को गवर्नमेंट के लिंकअप किया जाएगा। ये लिंकअप सिर्फ उनके साथ किया जाएगा जो कि ट्रेंड होंगे या कोई ना कोई उनके पास फैमिली मेडिसिन की क्वालिफिकेशन होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है वो, अगर आप लोगों के पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप लोग एमसीपीएस और एमआरसीजीपी इंटरनेशनल के पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स में आप लोग इंडक्ट करिए, ठीक है? फातिमा, इसका जवाब मैं दूंगी। So there is a lot of saturation in this specialty because all MBBS graduates are GPs. No, specialty में नहीं है लोग, बहुत कम लोग हैं स्पेशलिटी में, सारे के सारे जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि एमबीबीएस हैं, ठीक है? आप ये देखिए सिर्फ 20% लोग, पूरे जो एमबीबीएस लोग हैं उनमें से सिर्फ 20% स्पेशलिस्ट होते हैं, और ये स्पेशलिस्ट सिर्फ फैमिली मेडिसिन के नहीं है, ये थ्रू आउट है। मतलब इसमें मेडिसिन भी है, पीड्स भी है, गायनी भी है, सर्जरी भी है, सब है, ठीक है? तो सिर्फ जो 100 लोग अगर क्वालिफाई करते हैं उसमें से 20% स्पेशलिटी में जाते हैं, बाकी 80% जीपीज बन जाते हैं जो कि किसी स्पेशलिटी में नहीं जाते, ठीक है? यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत थोड़े से जो है वो लोग हैं। एमसीपीएस के अब ये 1600 एमसीपीएस ग्रेजुएट्स हैं, एमआरसीजीपी के कुछ मिला के 700 हो गए हैं। बहुत कम यहाँ पर जो है वो फैमिली मेडिसिन की स्पेशलिटी में लोग हैं, इसीलिए सैचुरेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। रिसेंटली 100 आवर्स फैमिली मेडिसिन अंडर ग्रेजुएट में पीएमडीसी ने मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है? हर मेडिकल कॉलेज अब 100 आवर्स ऑफ फैमिली मेडिसिन पढ़ाएगी। फातिमा, ये सारे सवाल अपने तक रखिए, आई एम गोइंग टू आंसर ईच वन ऑफ दीज, ठीक है? हाँ, एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर पीएमसी, ये मैं सब जवाब दे रही हूँ डॉक्टर अयूब, ये मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको दे रही हूँ, ठीक है? एमआरसीजीपी इंटरनेशनल इज नाउ रिकग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी, ठीक है? रिसेंटली मेरे ख्याल में 6 महीने पहले पीएमडीसी ने एमआरसीजीपी इंटरनेशनल को रिकग्नाइज कर दिया है। फैमिली मेडिसिन के डिप्लोमास और कोर्सेज एक ही बात है, ठीक है? डिप्लोमास और कोर्सेज में कोई फर्क नहीं होता, ये सब एक ही बात है। थ्रू आउट द कंट्री लॉन्च हो चुके हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं क्वालिफाइड फैमिली फिजिशियंस के लिए। ये वाला सवाल था किसी का, आई कैन नॉट टेक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन फैमिली मेडिसिन इन पाकिस्तान बिकॉज आई हैव नॉट बीन ट्रेन्ड इन अ टीचिंग हॉस्पिटल। इज दिस ट्रू और फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक? क्या ख्याल है आप लोगों का? ट्रेनिंग क्या जरूरी है पोस्ट ग्रेजुएट फैमिली मेडिसिन क्वालिफिकेशन लेने के लिए? दिस इज फॉल्स। सो दो ऐसे जो है वो एग्जाम्स है, एमआरसीजीपी इंटरनेशनल और एमसीपीएस,
जो 5 years के एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यू कैन टेक दीज एग्जाम्स। पाकिस्तान में उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी ट्रेनिंग पाथवे, एक्सपीरियंस पाथवे एंड ट्रेनिंग पाथवे की सेम वैल्यू है पाकिस्तान में। हाँ, बाहर ओमान में किसी ने अभी कहा, कनाडा में, एल्सवेयर, एनीवेयर, वहां पे ट्रेनिंग इज रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अगर आपके पास 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं एमसीपीएस का भी और एमआरसीजीपी का भी। ठीक है, आदिया काउंट होता है, टेली हेल्थ एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, कोई भी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर अदनान ने पूछा मेडिकल कॉलेजेस विल प्रेफर एफसीपीएस एंड MCPS on diploma in family medicine. There are already so many FCPS family medicine graduates in the market. That's not true. बेटा पूरे पाकिस्तान में पता है कितने लोग हैं फैमिली मेडिसिन के FCPS? कोई गैस करेगा? पूरे पाकिस्तान में FCPS फैमिली मेडिसिन के कितने हैं? अच्छा, इतना आप बताइए, कितने फैमिली मेडिसिन के ग्रेजुएट्स हैं FCPS? पाकिस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में FCPS फैमिली मेडिसिन कितने हैं? पूरी दुनिया में FCPS फैमिली मेडिसिन कितने हैं? वेरी फ्यू। कितने? कितने? एक गैस लगाओ। इन पाकिस्तान ओवर 100 फॉर श्योर। रॉन्ग अदनान। पूरे पूरे दुनिया में FCPS जिन्होंने पाकिस्तान से फैमिली मेडिसिन किया है वो 100 या 110 ऐसे हैं। ठीक है, पूरी पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में उसके आधे भी नहीं है, 50 से भी कम है, आई वुड से 40। समझ आइए? अब 40 जो है वो कितनी मेडिकल कॉलेजेस में फिट होंगे भाई? ज्यादातर कराची में है क्योंकि ट्रेनिंग ही यहाँ पे हो रही है। तो लाहौर में कहां से आएंगे, केपीके में कहां से आएंगे, बलूचिस्तान क्वेटा में कहां से आएंगे? आप लोग ही है ना जो जहां जहां बैठे हुए हैं वो वहां वहां फिल इन करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में FCPS फैमिली मेडिसिन की ट्रेनिंग पहले सिर्फ AKU में होती थी फातिमा, अब इंडस में है, जियाउद्दीन में स्टार्ट होने वाली है, JSMU में स्टार्ट होने वाली है, याकत नेशनल में है, लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में है, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में है। ठीक है, KPK में इंशाल्लाह खैबर मेडिकल में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्सेज में अगर आप कोई क्लिनिकल अटैचमेंट्स करते हैं तो वो आपकी ट्रेनिंग में काउंट हो जाता है, एक्सपीरियंस में काउंट हो जाता है। अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज में आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर ताजदार कह रही है आई एम डूइंग 1 year फैमिली मेडिसिन सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम किंग एडवर्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बेटा किंग एडवर्ड में जो है ना वो आई एम श्योर वो कोर्स अच्छा होगा, लेकिन किंग एडवर्ड में कोई फैमिली मेडिसिन ट्रेंड जो है वो मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई फैमिली मेडिसिन ट्रेंड बंदा हो जो कि वो कोर्सेज करा रहा हो। तो आई डोंट नो कि कितना अच्छा है, उसकी क्या यूटिलिटी है, उसको पढ़ाता कौन है। बट 1 year के कोर्सेज आपको एटलीस्ट फैमिली मेडिसिन का एक ओवरऑल व्यू दे देते हैं एंड देन यू कैन गेट इनटू द स्पेशलिटी। आपको समझ आ जाता है कि किस तरीके से घुसना है स्पेशलिटी में। फातिमा मेमोरियल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी FCPS स्टार्ट हो गया है बेटा। आफ्टर MCPS एनी एग्जेम्पशन फॉर FCPS? अच्छा, MCPS की जो एग्जेम्पशन है ना वो ट्रेनिंग में है। तो अगर किसी ने 2 साल की MCPS की ट्रेनिंग की हुई है तो उसको जो है वो FCPS में एग्जेम्पशन मिल जाती है 2 years की ट्रेनिंग की, क्योंकि वो उसने एज MCPS ऑलरेडी की हुई होती है। ठीक है, 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 3 years का एक्सपीरियंस पोस्ट हाउस जॉब, डॉक्टर नवाल, हाउस जॉब इज नॉट इंक्लूडेड। 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप रजिस्टर करवा सकते हो MCPS के RTMC, CPSP के RTMC से, रिसर्च एंड ट्रेनिंग मॉनिटरिंग सेल से। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द MCPS एग्जाम। एग्जाम आपको 5 साल की एक्सपीरियंस के बाद ही देने मिलेगा, लेकिन आप
रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्टर जल्दी करवाने से फायदा क्या होता है? ये फायदा होता है कि उनकी 3 वर्कशॉप्स होती है। वो 3 वर्कशॉप्स को अटेंड करने में कम से कम 1 साल लग जाता है। तो while you have 3 years of experience, you can get yourself registered, continue with your workshops and complete your workshops and then take the exam when you have 5 years of experience. ठीक है? अगर आप क्लिनिक कर रहे हैं वो भी काउंटेड है, अगर आप किसी के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं वो भी काउंटेड है, अगर आप टेली हेल्थ कर रहे हैं वो भी काउंटेड है। डॉक्टर कंवल, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, काफी मिनिमल से चार्जेस होते हैं, जो कि मतलब एक कॉलेज को आपको जाहिर एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, उनको तो देने होते हैं, और वर्कशॉप्स भी कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है? यू कैन आस्क महक। महक जो है वो रजिस्ट्रेशन में आप लोगों की हेल्प कर देती है। एमसीपीएस की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होती है जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी तक। ठीक है? सो 1 जैन से लेके 31 जैन तक एमसीपीएस की रजिस्ट्रेशन होती हैं। एमआरसीजीपी की रजिस्ट्रेशन आप जब करवाओगे उसके फौरन बाद एग्जाम दे सकते हो। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल में कोई वर्कशॉप नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एग्जाम देना होता है। ठीक है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस भी होती हैं। ठीक है? सो लेट मी जस्ट tell you the eligibilities and everything. So FCPS की eligibility part 1 FCPS है। ठीक है? Eligibility of FCPS is part 1. ट्रेनिंग 4 साल की करनी होती है। अपॉर्चुनिटीज अप टू प्रोफेसर लेवल है। अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आप घुस सकते हो। यू कैन बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एंड यू कैन मूव ऑन टू बी अ प्रोफेसर if you have family medicine FCPS 4 years training. पार्ट 1 आपने किसी में भी दिया हुआ हो, सर्जरी में भी चलेगा, पीड्स में भी चलेगा, मेडिसिन में भी चलेगा, ओबीजीवाईएन में भी चलेगा, किसी भी स्पेशलिटी में आपने पार्ट 1 दिया है, आप फैमिली मेडिसिन रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? अनफॉर्चुनेटली सीट्स बहुत कम होती हैं। लियाकत में 1 होती है, इंडस में 2-3 होती हैं, एकेयू में 4 होती है। सो मिला जुला के पूरे कराची में मेरे ख्याल में 10 सीट से ज्यादा नहीं होती है एवरी ईयर। ठीक है? एवरी ईयर 10 सीट्स होती है, विच इज वेरी वेरी लेस। इसीलिए फिर आपको जो है वो दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ बनना है, अगर आपने प्रोफेसर लेवल तक पहुंचना है, अगर आपने कोई चेंज करके दिखाना है, अगर आपने लीडरशिप पोजीशन में आना है, तो गो फॉर एफसीपीएस फैमिली मेडिसिन। और इसमें पार्ट 1 अगर आपका 10 दफा भी फेल हुआ है, 11वीं दफा भी आप दीजिए और पार्ट 1 जो है वो क्लियर करके गेट इनटू द रेजिडेंसी प्रोग्राम। ठीक है? हाउ क्लोज यू आर, सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ठीक है ना? सो ये याद रखिए बात। Can you give suggestions of where one can get clinical attachment in different cities if out of clinical practice? बेटा आप where are you located? मुझे location बताइए अपनी, I'll help you through it. FCPS में मैंने आप लोगों को बता दिया, इसकी इंडक्शंस जनवरी और जुलाई में होती है। इसी तरीके से MCPS की इंडक्शंस भी जनवरी और जुलाई में होती है, साल में 2 दफा होती है। रावलपिंडी में बेटा व्हाट यू कैन डू इज के क्लिनिकल अटैचमेंट्स, डॉक्टर नासिर शाह जो है वो काफी सारे क्लिनिक्स में अटैचमेंट्स करवाते हैं, सो यू कैन गेट होल्ड ऑफ हिज टीम और वहां उनके साथ आप क्लिनिकल अटैचमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है? एमआरसीजीपी यूके जो है वो तो आप प्रोफेसर लेवल तक जा सकता है, लेकिन एमआरसीजीपी इंटरनेशनल क्योंकि जो है वो एफसीपीएस के इक्विवेलेंट नहीं है, उसमें 4 साल की ट्रेनिंग नहीं है, 2 साल की है, तो इस वजह से उनका असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो है वो होता है, उससे आगे नहीं होता। सो मोहम्मद दीन, एज आई सेड कि एमआरसीजीपी और एमसीपीएस का जो स्कोप है ना वो ये है कि एमआरसीजीपी और एमसीपीएस वाले आप जो है अंडर ग्रेड टीचिंग जिसमें 100 आवर्स ऑफ फैमिली मेडिसिन अब हर जगह मैंडेटरी हो गए हैं, वहां पर आप इजीली फिट इन हो सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि एक आम जीपी से एमसीपीएस वाला जो फैमिली मेडिसिन का बंदा होता है वो कई ज्यादा बेहतर होता है प्रैक्टिस में भी। इसके अलावा आप किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एज अ फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी क्लिनिक्स कर सकते हैं।
ठीक है। सो जैसे इंडस में वी टेक एमसीपीएस एंड एमआरसीजीपी एज फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सिमिलरली लियाकत नेशनल में भी यही होता है और एकेयू में भी यही होता है। ठीक है, तो वो लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है उनका, वहां पर उनकी प्रैक्टिस होती है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो आप अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी जा सकते हो और अपना आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, और कहीं पे भी जाके क्लिनिक्स भी कर सकते हो, इंसेंटिव बेसिस पे जगह जगह पॉली क्लिनिक्स होते हैं, वहां पे भी आप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो। After workshops, 2 years of experience is also needed for MCPS. Yes, you need a total of 5 years experience और 3 years पे registration करवा के अगले workshops कर लीजिए while you are taking your experience as well. ठीक है, MCPS is recognized in UAE. It is recognized in ओमान, इट इज रिकग्नाइज्ड इन सऊदी। ठीक है, तो एमसीपीएस से आपको एज मिलता है वहां पर और फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट की पोस्ट मिलती है। ठीक है, यू डिड योर, मोहम्मद दीन कह रहे हैं आई डिड माई एमआरसीजीपी इंटरनेशनल, हाउ कैन आई डू एमसीपीएस बीइंग ओवरसीज? तो ओवरसीज के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। होता यह है कि एग्जाम तो ऑनलाइन हो जाता है, सऊदी में भी उनका सेंटर है जहां पर आप जाके और थियोरी का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वर्कशॉप्स के लिए आपको आना पड़ता है इधर। ये आप प्लीज सीपीएसपी से कंफर्म कर लीजिएगा, वर्कशॉप्स के लिए आना पड़ता है। आरटीएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए मिस महक आपको हेल्प कर सकती है, जस्ट गेट इन टच विद हर, शी कैन हेल्प यू आउट विद इट। हैदराबाद में अटैचमेंट ऑप्शंस अनफॉर्चुनेटली आई के नॉट थिंक ऑफ, लेकिन बदीन में जरूर है। बदीन का जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें इंडस जो है वो वहां पर अटैचमेंट्स देता है थ्रू द एमआरसीजीपी ट्रेनिंग। सो इंडस इज ट्रेनिंग फॉर एमआरसीजीपी एज वेल एज एमसीपीएस। टर्शरी केयर में एमसीपीएस बेटा डॉक्टर नवीन, मैंने अभी बताया एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट की पोस्ट होती है। हमारे पूरे इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क पे वी एटलीस्ट हैव 50 एमसीपीएस डॉक्टर्स। ठीक है, थ्रू आउट द नेटवर्क 50 के करीब हमारे पास एमसीपीएस या एमआरसीजीपी इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं। ठीक है, एंड दे आर फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट। महक का कॉन्टैक्ट नंबर तो आप लोग उसी के थ्रू तो आए हैं, वो 0314 वाला जो नंबर, 0341 वाला नंबर जो है। ठीक है, so you've come through that number only. Mehak, can you please give them your number over here? Can you please write your contact over here? RTMC का आप ऑनलाइन भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, but if you want help, you can ask Mehak. ठीक है, so Mehak, can you please provide your number here? ठीक है, तो नंबर उन्होंने अभी आपको चैट बॉक्स में लिख के दे दिया है। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल बहुत सिमिलर है एमसीपीएस की एलिजिबिलिटी, 5 साल का एक्सपीरियंस या 2 years ऑफ ट्रेनिंग। 2 years की ट्रेनिंग पहली दफा इंडस हॉस्पिटल ने स्टार्ट की है अभी अक्टूबर से। ठीक है, तो 2 years की एमआरसीजीपी की ट्रेनिंग और कहीं पे भी नहीं हो रही है सिवाय इंडस हॉस्पिटल के, एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड। मेरे ख्याल में अब दूसरे भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। और ये 2 साल की ट्रेनिंग आप लोग कहीं पे भी लेके जाओगे ना, सऊदी में, यूएई में, आपको हर जगह पर ये 2 years की ट्रेनिंग जो है वो काम आएगी, क्योंकि ट्रेनिंग सुपीरियर होती है एक्सपीरियंस पाथवे से। बट एक्सपीरियंस पाथवे रखने का मकसद ये है कि वी वांट टू इनकरेज जनरल प्रैक्टिशनर्स टू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स ऑन जॉब हैं, अपने क्लिनिक्स करते हैं, वी वांट देम कि वो लोग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ले, इसीलिए हमने एक्सपीरियंस पाथवे को सीपीएसपी से अप्रूव करवाया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास एमआरसीजीपी इंटरनेशनल है तो एमसीपीएस करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज ऑलवेज गुड इफ यू हैव मोर डिग्रीज, यू हैव एन एज ओवर अदर पर्सन हु हैज 1 डिग्री। ठीक है, किसी ने पूछा है आरटीएमसी रजिस्ट्रेशन अगर जैन में करवाई जाए तो वर्कशॉप सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगी। आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, हो जाती है, लेकिन आपको ना बार बार सीपीएसपी जाके ना उनको पुश करना पड़ेगा कि मेरा प्लीज वो नंबर लगा दे ताकि मैं सितंबर में अटेम्प्ट दे सकूं। ठीक है, यू कैन गिव सितंबर अटेम्प्ट, हो जाती है अगर आप थोड़ा सा उनको प्रोएक्टिवली फॉलो करें। एमसीपीएस की डिग्री के लिए क्लिनिकल अटैचमेंट की जरूरत नहीं है आयशा, बट द इशू है कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए हुए होते हैं ना, तो वो उनको ये होता है कि हम क्लिनिकल अटैचमेंट कर लें ताकि थोड़ा सा हमारा हैंड्स ऑन हो जाए ना, एग्जाम देने के लिए हैंड्स ऑन होना भी जरूरी होता है। अगर किसी ने एमसीपीएस एक्सपीरियंस बेस किया हुआ है तो एफसीपीएस ट्रेनिंग में एग्जामिशन डॉक्टर अदनान नहीं मिलती है, क्योंकि दैट इज ट्रेनिंग पाथवे ना। किसी की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पे ट्रेनिंग में कभी एग्जामिशन नहीं मिलती है, एग्जामिशन सिर्फ उस वक्त मिलती है जब आपने एक्चुअली ट्रेनिंग की हुई हो।
ठीक है। क्लिनिकल अटैचमेंट्स अगर आपको करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो HR में। अदरवाइज जो हमारा MRCGP का फ्लेक्सिबल पाथवे है वो काफी लोगों ने लिया हुआ है। फ्लेक्सिबल पाथवे में ट्वाइस अ वीक क्लिनिक्स होते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके एडमिशंस अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होंगे। ठीक है। डिप्लोमास एंड कोर्सेज आर द सेम। ये कोई भी MBBS डॉक्टर कर सकता है, 1 से 2 साल के जनरली होते हैं। अपॉर्चुनिटीज यही होती है कि जिस इंस्टीट्यूशन से आपने किया है कोर्स या डिप्लोमा, आप वहां पे अपॉर्चुनिटी देखिए आपके लिए क्या है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं ना अपॉर्चुनिटी वो ही देते हैं। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटी, तो आपको बाहर अपॉर्चुनिटी उसके लिए मिलना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन यस, अगर सेहत सहूलत कार्ड GP शिप से कनेक्ट हो गया तो फिर मैंडेटरी हो जाएगा कि जो भी जनरल प्रैक्टिशनर सेहत सहूलत कार्ड के थ्रू पेशेंट्स को लेना चाहता है, उसके पास कोई ना कोई फैमिली मेडिसिन का डिप्लोमा कोर्स या कुछ ना कुछ उसने किया हुआ। CME कोर्सेज होते रहते हैं, क्लिनिकल अटैचमेंट्स अवेलेबल होती हैं, जगह जगह क्लिनिकल अटैचमेंट्स आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ फी सबीलिल्लाह क्लिनिक, जो कि एक वेलफेयर क्लिनिक है, और ये वेलफेयर क्लिनिक कराची में 4 जो है वो जगहों पर रन कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो अपनी क्लिनिकल अटैचमेंट्स हमारे MCPS और MRCGP इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ ले सकते हैं। वी हैव ऑल डॉक्टर्स हु आर either MCPS or MRCGP. ठीक है। So if you want to get an attachment with them in my supervision, you can come. ठीक है। तो उसके लिए आपको एक उसका कैंपस इज इन क्लिफ्टन, एक बल्कि 2 कैंपसेस है क्लिफ्टन में, एक कैंपस उसका लांडी में है, और चौथा कैंपस उसका इंटीरियर सिंध में है। ठीक है। Does 1 year certificate in family medicine help in MCPS preparation? Yes, of course. So Naveen, जो ये 6 months का भी I'm going to talk about the course which I ये सारी आप लोगों के लिए अटैचमेंट है, ये आप लोगों के लिए सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए MCPS जो है ना वो सिर्फ एक क्लिनिकल स्पेशलिटी के अलावा यू कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आपको सारी स्पेशलिटीज का पता है। तो इफ यू वांट टू गेट इनटू हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो आप ये भी कर सकते हो कि यू कैन डू अ MBA, ऑन जॉब MBA कर लीजिए, या कोई भी हेल्थ पॉलिसी मैनेजमेंट या हेल्थ प्रोफेशन या एजुकेशन में भी आप जाना चाहते हैं, हेल्थ एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, इवन देन आपका MCPS या आपका MRCGP आपको बहुत हेल्प करेगा टू गेट इनटू एनी पैरेलल जो है वो फील्ड। सो यू कैन बेसिकली गेट इनटू अदर फील्ड्स एज वेल। सेहत सहूलत कार्ड क्या होता है बेटा? सेहत सहूलत कार्ड सिंध में इतना वो नहीं है, बट पंजाब में इट इज सॉर्ट ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास वो कार्ड हो तो यू कैन गो टू अ डॉक्टर, यू कैन गेट एडमिटेड, यू कैन गेट टेस्ट डन, ऑल फ्री। ठीक है। वो सब फ्री होता है। तो हेल्थ कार्ड अगर आपके पास है तो वो आपको, जैसे हम टैक्स देते हैं ना, तो हमारे टैक्स के अगेंस्ट में हमें ये हेल्थ बेनिफिट मिलता है। राइट। सो सेहत सहूलत कार्ड इज वेरी पॉपुलर इन पंजाब, मगर अभी भी वो प्राइमरी केयर से लिंक नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि पेशेंट जो है ना वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाता है पेट दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, तो दे शुड बी गोइंग टू अ प्राइमरी केयर क्लिनिक रादर देन गोइंग टू अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल। तो इसीलिए सेहत सहूलत कार्ड को प्राइमरी केयर से लिंक करने की जरूरत है। लेकिन ये उसी वक्त लिंक हो सकता है जब हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स, ट्रेन जनरल प्रैक्टिशनर्स हो, और अनट्रेन्ड क्वैक प्रैक्टिसेस करने वाले लोग ना हो। ठीक है। ओके। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लीडरशिप रोल्स में आई हैव सीन MCPS बीइंग CEOs ऑफ द हॉस्पिटल्स, आई हैव सीन MCPS लीडिंग आउटरीच सर्विसेज क्लिनिक्स, सो बहुत बड़ी दुनिया है आप लोगों के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कैप्शन? कोई कैप्शन देना चाहेंगे इसको, इस पिक्चर को? बेटा किसी के साथ भी अगर आपने अटैचमेंट भी लिया ना तो वो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। somebody asked। नबिया, बुक्स हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन व्हाट यू कुड डू इट्स के
यू कुड डिपेंड करता है, अगर आपको बेसिक्स पढ़नी है तो डेविडसन से पढ़िए, अगर आपको जो है वो आगे का पढ़ना है तो आर्टिकल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यू नो, इफ यू गेट इनटू दिस प्रेपरेटरी कोर्स तो वी कैन प्रोवाइड यू विद द लेटेस्ट आर्टिकल्स, जो कि वैसे सब्सक्रिप्शन के बगैर अवेलेबल नहीं होते। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद ऑल दोज लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड आर्टिकल्स, तो उससे पढ़ना होता है, उससे पढ़िए तो ज्यादा बेहतर है। रिवाइज करना हो तो ऑक्सफर्ड बुक ऑफ जनरल प्रैक्टिस जो है वो, उसका भी ऑनलाइन वर्जन वी आर गोइंग टू गिव यू, बट उसका एक आप बुक भी ले लें तो बेहतर होता है। सो बहुत सारे अच्छे अच्छे कैप्शंस आ रहे हैं। एंड डोंट ओनली वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। ठीक है, मेरा ये कैप्शन है कि स्मार्टली वर्क करिए, अपने फ्यूचर के, अपने करियर के बारे में सोचिए, ये सोचें कि कहाँ पहुंचना है। ठीक है, सो वहां से वो रास्ता लें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, बस रास्ते पे चल पड़ते हैं मंजिल के बारे में सोचे बगैर। ये मत करें। ठीक है, जहां पहुंचना है ना, रास्ता वही वाला लें। गलत रास्ते पे क्या, वो थ्री इडियट्स देखी है ना आप लोगों ने, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो गो टूवर्ड्स अ गोल। ठीक है, थिंक ऑफ अ गोल, गो टूवर्ड्स इट। जीएमसी रजिस्ट्रेशन बेटा, इट डजंट काउंट हियर ना, वो तो हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। As you wish, I mean, whenever you want to join the preparatory course, ये preparatory course है 6 months का। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, ये इंटरैक्टिव होता है, जैसे अभी हम इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, हर मॉड्यूल में हम ऐसे ही इंटरैक्ट करते हैं। सो आई विल नॉट गिव यू एनी रिकॉर्डेड वीडियोस, मैं अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देती, मैं हर सेशन को इंटरैक्टिव लेती हूँ, जस्ट लाइक वी आर इंटरैक्टिंग राइट नाउ। और इसमें जो है ना, वो आपके सारे मॉड्यूल्स कवर होंगे, मेडिकल एथिक्स, फैमिली मेडिसिन अप्रोच, यहां तक के आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। अगर आप अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरीके से यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, आई एम गोइंग टू गिव यू अ गाइडलाइन। रिसर्च के बारे में भी हम बात करते हैं इसमें, प्राइमरी केयर रिसर्च के बारे में, मेडिकल एथिक्स के बारे में बात करते हैं। एंड देन ऑल द मॉड्यूल्स, एंडोक्राइनोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मेंटल हेल्थ, और क्या क्या होता है, पीडियाट्रिक्स, गाइनी, जीरियाट्रिक्स, पैलिएटिव केयर, ऑल द मॉड्यूल्स। तो तकरीबन हमारे 21 मॉड्यूल्स है, 21 मॉड्यूल्स, जो हम किस तरीके से कवर करते हैं कि हम सैटरडे और संडे को 3 आवर्स के जो है वो सेशंस लेते हैं फोर्टनाइटली। तो हर एक वीक छोड़ के अगले हफ्ते, ठीक है, एक हफ्ता ऑफ होता है, एक हफ्ता ऑन होता है। और सैटरडे को 5 to 8 क्लासेस होती है शाम में, शाम 5 बजे से लेके 8 बजे तक इसी तरीके से इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। और संडे को दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक, लेकिन एवरी वीक नहीं होती, एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ता होती है। उन 2 हफ्तों में वी प्रोवाइड यू विद ऑल द रीडिंग मटेरियल, जो आप लोग पूछ रहे थे, हम आपको बुक्स देते हैं, आर्टिकल्स देते हैं, वीडियोस देते हैं, जो कि वीडियोस मेरी खुद की पर्सनल वीडियोस जो है वो ली हुई हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यूज देते हैं, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, जो कि एमआरसीजीपी में भी आते हैं और एमसीपीएस इंटरनेशनल, एमआरसीजीपी इंटरनेशनल एंड एमसीपीएस दोनों में आते हैं। ठीक है, सो वी प्रोवाइड यू विद बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल उस स्ट्रक्चर पे होते हैं जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड वंस यू आर डन विथ योर थियरी एग्जाम, देन वी प्रोवाइड हेल्प टू यू फॉर टॉक्स। ठीक है, और नेक्स्ट संडे जो है वो हमारा पहला मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, फैमिली मेडिसिन अप्रोच, जिसमें हम हाउ टू स्टार्ट अ प्राइमरी केयर प्रैक्टिस, हाउ टू राइट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज फैमिली मेडिसिन, किस तरीके से आप जीपी प्रैक्टिस अपनी खुद की स्टार्ट कर सकते हो, यू नो देयर सो मेनी थिंग्स टू इट, हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, सो ये हमारा संडे 25 दिसंबर को जो है वो स्टार्ट होने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे, हाउ टू ब्रेक बैड न्यूज, हाउ टू डील विद एन एंग्री पेशेंट, यू नो सो मेनी सॉफ्ट स्किल्स जो आप लोगों को लर्न करने की जरूरत है एज अ फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिशनर। ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट यू कुड डू इज कि आप अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कि आप एक मॉड्यूल लेके देखिए, सी हाउ यू फील अबाउट इट, एंड देन यू कैन मूव ऑन। महक, अगर आप प्लीज अनम्यूट करें जो लोग हाथ उठा रहे हैं, so that I can hear from them. Maybe they want to say something important. If you can unmute, 2 people have raised their hands. Galaxy S6 and Techno Spark 6. Wow. नाम तो बता दीजिए अपने प्लीज, इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, एक को।
So who's unmute? कोई है unmute? Is there anybody who wants to ask a question? जिनको सवाल पूछने हैं वो हैं यहाँ पे. आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. So TechnoSpark, I've asked you to unmute. Can you unmute? Doctor, please unmute yourself. Thank you. वालेकुम अस्सलाम. I'm sorry, by mistake हो गया मेरे से hand raise. I'm It's very okay. sorry. It's okay. It's okay. No issue at all. और कोई है ऐसा? Any question you would like to ask? कोई सवाल है आपके जहन में? जरूर पूछिए. I again see 2 hands. Kavita, Kavita, if you want to speak up, please. Hello? जी कविता, we can hear मेरा you. क्वेश्चन, या थैंक यू सो मच. मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे आपने कहा हम एक कोई सेशन भी अटेंड करके इफ यू वांट टू ट्राई फॉर दिस थिंग एंड आफ्टरवर्ड वी कैन गो फॉर अ फुल कोर्स. सो इट्स इनिशियली लाइक एज यू सेड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th December, right? जी जी. So we can attend only one session, one weekend, like Saturday Sunday sessions on that day. बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप. मर्जी है आपकी. दैट डजंट मैटर. महक आपको जो है वो इसके लिए गाइड कर देंगी कविता. सो व्हाट वी डू इज कि अगर आप 6 आवर्स का सेशन ले रहे हो ना तो हम लोग 3 आवर्स के सेशन के जो है वो 3000 रुपीज लेते हैं. लेकिन अगर आप 6 आवर्स का सेशन ले रहे हो सो यू कैन पे 5000 रुपीज. लेकिन अगर आप पूरा कोर्स लेते हो ना तो आपको बहुत ह्यूज उसमें जो है वो फायदा होता है. ठीक है. अगर आप अलग अलग कोर्सेज लोगे ना तो फिर जाहिर है कि आप लोग मर्जी से तो ले सकते हो. यू कैन टेक 3 और 4 और व्हाटएवर यू लाइक. क्योंकि जाहिर है हो सकता है कि आप लोग की एंडोक्राइनोलॉजी कोई एक ऐसा बंदा हो जो कि एंडोक्राइनोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसकी एंडोक्राइनोलॉजी तो बहुत अच्छी है लेकिन ही वुड लाइक टू टेक पीड्स एंड गाइनी. तो ऐसे जो लोग हैं ना वो स्पेसिफिक सेशंस ले सकते हैं. बट अदर पीपल व्हाट अदर पीपल शुड बी डूइंग इज कि उनको पूरा कोर्स लेना चाहिए क्योंकि पूरे कोर्स में उनको ज्यादा फायदा होगा. उनको ज्यादा मतलब कम पैसे में 100 आवर्स का जो है वो पूरा टीचिंग मिलेगी. एंड व्हाट वी डू इज के पीपल हु कैन नॉट अटेंड उनको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते. लेकिन वी encourage people to attend. ठीक है. क्योंकि इंटरैक्टिव में आप जितना लर्न करते हो ना वो आप रिकॉर्डेड में नहीं करते हो लर्न. सर्टिफिकेट इब्राहिम क्या करोगे लेके? आई मीन व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द सर्टिफिकेट? दे देंगे भाई लेकिन करोगे क्या? यू नो तो आप लोग जो है ना वो मतलब मॉड्यूल के सेशन लीजिए ना. ये वाला सेशन को आपको की सर्टिफिकेट का क्या फायदा होगा? ओरिएंटेशन टू फैमिली मेडिसिन की कोई आप मॉड्यूल पढ़ लीजिए. कोई मेडिकल एथिक्स का अटेंड कर लीजिए. इट्स सच एन इंटरेस्टिंग मॉड्यूल. सो व्हाई डोंट यू अटेंड अ मॉड्यूल रादर देन ओरिएंटेशन की सर्टिफिकेट से क्या मिलेगा? माय प्लान टू MRCGP फ्यूचर. आई हैव 4 years एक्सपीरियंस. आप 1 साल और करके MRCGP के लिए रजिस्टर करा लीजिए. इफ यू वांट यू कैन रजिस्टर फॉर MCPS नाउ. 4 साल है आपके. 3 साल पे आप करा सकते हो. सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर MCPS. वर्कशॉप्स कर लीजिए. और अगर आप बाहर है MRCGP कर लीजिए. MRCGP साउथ एशिया. ठीक है ना. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं ACCME accredited कुछ कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाली हूँ इंशाल्लाह. So ACCME accredited courses में you can register yourself और वो ACCME hours आपके recognize होंगे दुनिया के किसी भी हिस्से में. ठीक है. MCPS इब्राहिम acceptable तो है. It is bits and pieces. सऊदी के कुछ जो है वो आप लोगों की जगहों पर MCPS acceptable है, कुछ पे नहीं है. It's not like across. लेकिन वो लोग भी ट्रेनिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं. एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे को वो इतना प्रेफर नहीं करते. बट मैं आपको बताऊं कि एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे मैंने जैसे कहा कि शुरू करने की जो वजह थी वो यही थी कि हम एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे के थ्रू जीपीस को एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दिलाने में इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान में. इट वाज नेवर मेंट फॉर सऊदी कंट्रीज. ठीक है. वो सऊदी कंट्रीज के लिए कभी लाया ही नहीं गया था. मेडिकल एजुकेशन में आप लोगों का बहुत अच्छा करियर हो सकता है एमसीपीएस करने के बाद. क्योंकि एमसीपीएस को सारे सब्जेक्ट्स आते होते हैं. पीड्स भी आती है आपको, गायनी भी आती है आपको, सब कुछ आता है. तो मेडिकल एजुकेशन में आप लोगों का बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है. CPSP में you would like to raise voice regarding what बेचारे CPSP वाले. Your voice at CPSP to create positions for family medicine specialists. नवीन
सीपीएसपी कैसे पोजीशंस क्रिएट करेगा, कहाँ पे पोजीशन क्रिएट करेगा? सीपीएसपी का बेटा ये काम ही नहीं है, ये है पीएमडीसी का काम है ये। तो पीएमडीसी पे आप जाके शोर करिए, धरना लगाइए, जो करना है करिए, पीएमडीसी को कहिए कि हमारे लिए जो है ना वो पोजीशंस क्रिएट की जाए। तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, 100 आवर्स उन्होंने अंडर ग्रेजुएट उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। अब जैसे जैसे मेडिकल कॉलेजेस जाते जाएंगे, अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं हैदराबाद में जो लम्स है, लियाकत यूनिवर्सिटी है, वहां पर उन्होंने फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट स्टार्ट करने की इंटेंट शो की है, एंड दे आर हायरिंग समबडी फॉर देयर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हर जगह पर जो है वो उनको समझ आ गया कि दे हैव टू स्टार्ट। एसएमसी जेएसएमयू में ऑलरेडी है, डाउ में ऑलरेडी है डिपार्टमेंट, और इनफैक्ट डाउ में 200 आवर्स ऑफ फैमिली मेडिसिन पढ़ाने के लिए उन्होंने प्लेज किया है टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, CME courses in which area as no clinical hours training in Islamabad? इस्लामाबाद में हाँ क्लिनिकल अटैचमेंट्स है अवेलेबल, वहां पर जो है वो बिल्कुल है अवेलेबल बेटा इस्लामाबाद में। इसमें भी डॉक्टर नईम होते हैं, एक डॉक्टर नईम होते हैं वहां पर इस्लामाबाद में, ही डज अटैचमेंट्स। शिफा में भी फैमिली मेडिसिन है बाय द वे, तो यू कैन गो टू शिफा, मीट डॉक्टर साइमा परवेज over there. She is the head of family medicine. उनसे मिलिए, she is going to tell you a way to get your attachments done. ठीक है, MRCGP के फ्लेक्सिबल पाथवे एट इंडस के बारे में बताऊं। सो डॉक्टर मंसूर, MRCGP की ट्रेनिंग इंडस ने स्टार्ट की है, और फ्लेक्सिबल पाथवे 2 साल का है। उसमें आप एक हफ्ते में 2 क्लिनिक्स करते हैं, और वो 2 क्लिनिक्स एक एक स्पेशलिटी में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल दिसंबर में आपकी इंटरनल मेडिसिन क्लिनिक्स लगी हुई है, तो आप पूरे हफ्ते में 2 दिन आके 2 इंटरनल मेडिसिन की क्लिनिक्स करेंगे। ठीक है, और इस तरह से 2 साल तक आप फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग करेंगे, तो वो जो है वो आपकी 2 साल की फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग आपकी जो है वो एक्सपीरियंस की तरह से काउंट होगी, और ट्रेनिंग भी है वो। तो आपको जो है वो MRCGP इंटरनेशनल एग्जाम, अगर आपके पास ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये 2 साल की ट्रेनिंग लेके और फैमिली मेडिसिन के एग्जाम MRCGP इंटरनेशनल में अपीयर हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 5 इयर्स 4 साल में आप अपीयर हो सकते हैं। My house job completed in 2018, so in 2023 I will be eligible here on GP level for your certificate. ये सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी ले सकता है। ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एक ऐसा कोर्स है जो anybody can take it, even if you don't have 5 years of experience, you can take this certificate course. लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप MCPS और MRCGP के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और आप जो है वो सर्टिफिकेट्स तो हम जरूर आपको जो है वो हर मॉड्यूल की सर्टिफिकेट अलग अलग मिलती है। तो जैसे आप मेडिकल एथिक्स का मॉड्यूल लेंगे, उसकी सर्टिफिकेट आपको अलग मिलेगी, फैमिली मेडिसिन अप्रोच की अलग मिलेगी। डॉक्टर राजा को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, एनीबडी हु हैज रेज्ड हैंड अनम्यूट कर दीजिए। MRCGP इंटरनेशनल की ट्रेनिंग कैन बी काउंटेड एज MCPS ट्रेनिंग, ये सवाल है। नो, क्योंकि MCPS CPSP कराता है, MRCGP RCGP UK की एक वो है मेंबरशिप। ये दोनों अलग अलग कॉलेजेस हैं, ये एक दूसरे की बात नहीं मानते। ठीक है, सो ना MCPS MRCGP वाले मानते हैं और ना MRCGP MCPS वाले मानते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी बोलिए राजा। मैडम मैंने ये पूछना है कि जिस तरह के FCPS की ट्रेनिंग एक बंदा कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसके लिए MCPS के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी पार्ट 2 अगर FCPS का क्लियर ना किया हो, वो MCPS फैमिली मेडिसिन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मैं अभी जवाब देती हूँ इनका, बिल्कुल सही। हाँ, यही सवाल है ना? ओके जी, so, और जी, एक और क्वेश्चन ताकि दोनों एक ही दफा आप क्लियर कर दें। MRCGP इंटरनेशनल जो है उसके लिए FCPS की जो ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है वो उसमें काउंट हो जाएगी? MRCGP इंटरनेशनल के लिए जी, ओके, लेट मी आंसर यू। थैंक यू। ओके, सो एक तो ये है कि आपका पहला सवाल था कि अगर FCPS किसी ने ट्रेनिंग की हुई है तो वो MCPS एग्जाम दे सकता है, उसका जवाब है नहीं। द रीजन है कि जहां आप FCPS के लिए अगर रजिस्टर्ड हो ना CPSP के साथ, तो CPSP विल नॉट रजिस्टर यू फॉर MCPS। तो पहले तो आप FCPS कंप्लीट करिए,
एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद आप एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। आप जब एफसीपीएस से आउट हो जाओगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तब तक नहीं करा सकते। तो एग्जाम देके पास करके फिर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो फॉर एमसीपीएस। जहां तक एमआरसीजीपी का ताल्लुक है, आपकी जो 4 साल की ट्रेनिंग है वो एज एक्सपीरियंस काउंट होगी, एज ट्रेनिंग काउंट नहीं होगी। तो वो 4 साल का एक्सपीरियंस तो आपके पास ऑलरेडी है। अगर एक आध साल का और एक्सपीरियंस हो तो आप एमआरसीजीपी इंटरनेशनल एग्जाम बगैर किसी ट्रेनिंग के या बगैर किसी एक्सपीरियंस के दे सकते हो। ठीक है, ये जवाब है आपके। और एक सवाल आया था कि एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल है? इज इंटरनल मेडिसिन सुपीरियर टू फैमिली मेडिसिन? बेटा, एक इंटरनल मेडिसिन का आप, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन, डू यू थिंक आई एम इंफीरियर टू एनीबडी who's a professor in any other field? I don't feel so. ठीक है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। और मेरी जो रिस्पेक्ट है, मुझे जिस तरीके से दूसरे कंसल्टेंट्स मुझसे बात करते हैं, जिस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे बारे में कोई भी ऐसा सोचता है कि ये हमसे कमतर है, इंफीरियर है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु यू आर, what you do. ठीक है, it does not depend on the speciality, it does not depend on what you've done, but who you are as a person. ठीक है, तो आप जैसे है ना वैसे ही लोग आपके साथ बिहेव करेंगे। अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो मिलेगी, अगर दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी दूसरी स्पेशलिटी से कि वो आपको वो रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, if somebody wants to do research and publication in family medicine, guide about it. अच्छा, इसके लिए ना we conduct courses, clinical research के courses होते हैं जिसमें आपको protocol writing और manuscript writing सिखाई जाती है। तो that is a completely different अपना scope है उसका। और उसमें जो है वो आप कोर्सेज में अप्लाई करके और फिर जहां पे भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं वहां पे आप रिसर्चेज अपनी स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट करियर यू कुड लुक फॉरवर्ड टू। आप कोर्सेज भी ले सकते हो, मास्टर्स भी होते हैं, रिसर्च के मास्टर्स होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च वगैरह के। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। मास्टर्स होता है पब्लिक हेल्थ में, वो भी आप कर सकते हो। मास्टर्स होता है एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, MHPE जिसको कहते हैं, मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन, वो भी आप एज अ कैरियर ले सकते हो। सो ये पूरा हमारा जो है ना एक कैरियर गाइडेंस सेशन हो गया है, विच इज वेरी गुड, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है पाकिस्तान में कि हमें कैरियर गाइडेंस नहीं मिलती है, इसीलिए हम 3 इडियट्स की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। MCPS family medicine is counted in FCPS up to IMM level. That is right, but training pathway. अगर आपने 2 years की MCPS का ट्रेनिंग किया हुआ है तो आपको FCPS की 2 years की एग्जाम्पशन मिलेगी, लेकिन IMM देना पड़ेगा। ठीक है, मास्टर्स इन पब्लिकेशन हेल्थ नहीं बेटा, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता है मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। मास्टर्स ना ज्यादातर इन पर्सन होता है। पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन मास्टर्स नहीं होता है। बाहर की डिग्रीज फिर देखिए, बाहर आपको मिल जाएगा, बाहर कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन ऑप्शंस मिल जाएंगे। RTMC नहीं, आपको MCPS के लिए अगर आपने रजिस्टर कराया हुआ है साइकाइट्री के लिए, आपको वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले जाके वो MCPS साइकाइट्री की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएंगे, फिर आप MCPS फैमिली मेडिसिन की रजिस्ट्रेशन वापस से करवाएंगे। कोई मसला नहीं होगा नबिया। ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन कैंसिल करानी पड़ेगी। और कोई सवाल? MCPS from UAE online can we do? Yes, ऑनलाइन एग्जाम होता है, और अगर आप प्रेपरेटरी कोर्स लेना चाहें तो जरूर करें, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम एज आई सेड शायद वर्कशॉप करने आना पड़ेगा आपको। ठीक है, वर्कशॉप्स करने आना पड़ेगा। CPSP से प्लीज ये कंफर्म कर लीजिए। Thank you so much, Dr. Kavita, for having so nice words about me. And I would be happy to help each one of you. जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी नहीं है कैपेसिटी वहां पर मुझे थोड़ा सा बैकआउट करना पड़ जाता है, लेकिन मेरी जितनी कैपेसिटी है, I would like each one of you to get where you want to be. Not where I want you to be, but where you want yourself to be. ठीक है, तो आप लोग अपना गोल बनाइए and go for it. ठीक है, and there's nothing stopping you, inshallah, inshallah.
much. अगर आप लोगों को मजीद कोई information about the course चाहिए, about the preparatory course, about the family medicine course, about MCPS, MRCGP International, how to get into it, registrations के लिए help चाहिए, get in touch with Mehak. She has all the information and she also keeps in touch with me and asks me question. जो आप लोगों के ऐसे questions होते हैं जो कि उसके लिए answer करना इतना आसान नहीं होता. You can also email us your questions. So thank you very much. Have a good day and a great weekend. Allah Hafiz. Bye-bye. Thank you so much, Dr. Farida Amin, for such a great session. This is Mehak Imar from F Educators by Dr. Farida Amin. For more details and any other information, kindly contact me on the given number 0341 2157815 and kindly fill the feedback form. Thank you so much. Thank you so much, dear all, for joining us today. Hope it is a really informative session for you all. Thank you.